إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوائے تماشائے لب بام ابھی. محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بحاد فضل کرم احسان شکر ہے جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے میں نے قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ کوشش رہے گی انہی آیتوں کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے اندر آزمایا، یعنی ان کے امتحانات لیے. تو بزرگوں، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے امتحانات لیے ہیں. اور یاد رکھیں، جب نبی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے، اور جب غیر نبی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ کی سزا ہوتی ہے جو اس کو دی جا رہی ہوتی ہے. نبی پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کے درجوں کو اور بلند کرنے کا سبب بنتی ہے، لیکن جب غیر نبی پر تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کے عوض میں اس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہے. آپ علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر پیدا فرمایا جس گھر کے اندر بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا اور پھر ان کی پوجا کی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کیا کرتا تھا بلکہ بتوں کو بناتا بھی تھا اور پھر بتوں کو بیچ بھی دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، بچپن کے اندر ہیں. دیکھتے ہیں کہ میرے ابو جو ہے، میرے والد جو ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، ہر کام کرنے والا سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کا حل کرنے والا سمجھتے ہیں. ابھی ابراہیم علیہ السلام بچپن کے اندر ہیں، چھوٹی عمر ہے، اور اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا وہ سارا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے. چھوٹی عمر ہے، کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے لاجواب خطاب کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی. کتنے سال بزرگوں؟ 7 سال.
यहाँ 7 साल के बच्चे को कलमा नहीं आता, यहाँ 7 साल के बच्चे को वुज़ू के फराइज का नहीं पता, यहाँ 7 साल के बच्चे को गुस्ल के फराइज का नहीं पता, यहाँ 7 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि जब बड़ों से मिलना है तो कैसे मिलना है, जब बड़ों से कलाम करना है तो कैसे करना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ इसमें उस 7 साल वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसमें उस 7 साल की उम्र की बच्ची का कोई कसूर नहीं है। ये 7 साल का ना बच्चा मुजरिम है ना बच्ची मुजरिम है, मुजरिम है उसके वालिदैन जिन्होंने उसको कुरान करीम की तिलावत के साथ नहीं जोड़ा, जिन्होंने उसको मकतब के साथ, दरसगाह के साथ, मदरसे के साथ नहीं जोड़ा। मुजरिम तो उसके वालिदैन है। मैंने कल परसों देखा छोटा सा बच्ची शायद स्कूल से वापस रोती हुई जा रही है, वो साथ में एक बच्ची उसको ले जा रही है घर छोड़ने के लिए। तो मैंने वजह दरियाफ्त की ये बच्ची क्यों रो रही है, उसने कहा ये बच्ची कहती है मुझे मम्मी की याद आ रही है, इसलिए स्कूल से भाग कर वापस घर जा रही है। कितना बड़ा जुल्म अजीम है। 7 साल के बच्चे को शरीयत नमाज का हुक्म नहीं देती, हम 3 साल के बच्चे को स्कूल के अंदर डालते हैं। माँ के साथ जो उसने वक्त गुजारना था वो वक्त हम उसको नहीं देते, बाप के साथ जो उसने वक्त गुजारना था वो हम सर चढ़ाते हैं मास्टरों के, जाओ जी आप मास्टरों के हवाले चले जाओ ताकि हमारी जान बची रहे। ये तो जुल्म है। 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म शरीयत नहीं देती, हम 7 साल के बच्चे के ऊपर दुनियावी लोड इतना डालते हैं। और फिर आपने देखा होगा बच्चा छोटा सा है और बैग इतना बड़ा है उसके नीचे आया हुआ है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो खैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 7 साल की है, बाप से खिताब किया, क्या कहा कुरान मजीद ने नकल किया है, वक़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करो जब हमारे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बाप से खिताब किया था और खिताब करके क्या कहा था, इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। अब्बा जान ये बात अक्ल के खिलाफ है कि बुत को अपने हाथ से बनाया जाए और उसके बाद कहा जाए कि ये मेरा खुदा है। फरमाया इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मेरा मन ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है अब्बा तुम भी गुमराह हो और तुम्हारी कौम भी क्या है गुमराह है। पता ये चला जो चीज गलत है वो गलत है, अगर बाप भी कर रहा है तब भी चीज गलत है, जो चीज नाजायज है वो नाजायज है, अगर बाप कर रहा है या गैर कर रहा है तब भी क्या है नाजायज है, जो चीज हराम है वो हराम है, अगर चाहे कोई उसको अपना कर रहा है या गैर कर रहा है, हराम है, जो हलाल है वो हलाल है, जो हलाल है वो आप करते जाओ, जो सही है वो आप कर गुजरो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में परवाह ना करो। हमारे बारे में भी लोग कहा करते हैं कि बस आप वीडियो बनाते हैं बयान की, हम परवाह नहीं करते, हमें पता है ये काम सही है, हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे, हमें पता है इससे दूसरों को फायदा पहुंचता है, हम ये काम करते रहेंगे। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मेरी बात करके मेरे गुनाह अपने साथ ले जा रहे हैं, मुझे उनकी नेकियों में से हिस्सा मिल रहा है, मैं तो खुशनसीब इंसान हूं, मुझे टेंशन नहीं है कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। ये तो वक्त की बेहतरीन जरूरत है, जब इसके जरिए से बेहयाई फॉरवर्ड हो सकती है तो इसके जरिए से दीन फॉरवर्ड नहीं हो सकता, इसके जरिए से दीन फॉरवर्ड करने में क्या हर्ज है। तो खैर बुजुर्गों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 7 साल है, बाप से कहा अब्बा जान ये बात अक्ल के खिलाफ है कि बुत को हाथों से बनाया जाए और उसके बाद कहा जाए ये हमारा खुदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को समझाते कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। और आप भी बुजुर्गों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप से कहा ना कि ये चीज गलत है, तो बाप जवाब में कहता है तुम्हें क्या पता, तुम तो कल की पैदावार हो, तुम मेरे हाथ मेरी गोद के अंदर बड़े हुए हो, पले हुए हो, तुम्हें क्या पता। यही जवाब आज के बड़े भी देते हैं जब कोई नौजवान उनसे समझाए कि हजरत ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है, सही नहीं है, तो वापस रिप्लाई यही मिलता है तुम्हें क्या पता है,
तुम तो कर्म की पैदावार हो, अभी तुम्हें क्या पता। और ये बड़े भी गिला देते हैं और छोटे भी कभी कभार बड़ों को गिला देते हैं। जब बड़े छोटू से कहे ना बच्चा ये चीज गलत है, ये फैशन परस्ती है, ये बेहयाई है, ये काम गलत है, ये मत करो, तो बच्चे वापस पता है क्या कहते हैं, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने के इंसान हैं, आप तो पुरानी अकल रखने वाले हो। आज फॉरवर्ड जमाना है, आज नया सब कुछ चल रहा है, आपको क्या पता, आपको इस बारे में नहीं पता। बड़ों का भी ये जवाब है, छोटों का भी ये जवाब है, लेकिन बड़े भी याद रखें और छोटे भी सुन ले, जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है वो गलत ही है, चाहे उसको अपना करता है या उसको गैर कर रहा है। जो गलत वो गलत, जो हराम वो हराम, जो सही वो सही, जो जायज वो जायज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालों को समझाते ये चीज गलत है, ये खुदा तो नहीं हो सकते, खुदा तो वो है जो सारों को बनाता है, तुम कहते हो अपने हाथों से बनाकर इसको कहते हो कि ये खुदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझाते लेकिन वो ना समझते। एक मर्तबा जब सारी कौम चलेगी, मेरे पर मैं बात मुख्तसर करूंगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका जाना और उस बुतवाड़े के अंदर चले गए जहां उन बुतों को रखा गया था, और उसके बाद अंदर जाने के बाद बुतों को तोड़ा फोड़ा, उसके बाद किसी का कुछ काटा, किसी का कुछ आधा काटा, काटने के बाद जो बड़ा बुत था उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, वापस आ गए। जब कौम वापस आती है मेले से आकर देखती है कि खुदाओं का सत्यानाश हो चुका है, ये खुदा भी कैसे जिसको कोई तबाह और बर्बाद करके चला जाए और फिर पता भी ना हो कि किया किसने है। अकल के कितने अंधे थे ये लोग। जब आकर देखा बुतवाड़े का सत्यानाश हो चुका है तो पूछा कि ये किसने किया, तो कौम में से किसी ने कहा कि इब्राहीम, एक नौजवान है, समीअना फतई अरबी में कहते हैं उभरती हुई जवानी को, उभरती हुई जवानी वाला इंसान। कहा कि एक जवान है जो हमारे खुदाओं को, हमारे बुतों का बुरा भला कहता था, ये उसी का काम हो सकता है। खैर इब्राहिम को बुतवाड़े के अंदर नमरूद के कहने पर बुलाया गया। जब वहां पहुंचे तो बादशाह ने पूछा आपने हमारे खुदाओं का सत्यानाश किया? तो ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने किया, ना कहा कि नहीं किया, बल्कि बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। पूछा तुम्हारे खुदाओं को हुआ क्या? अल्लाह को ये जवाब बड़ा पसंद आया। उसने कहा हमारे खुदाओं का सत्यानाश है, किसी का नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का पाँव नहीं, किसी का कुछ नहीं है, और हमारा जो बड़ा खुदा है, जो बड़ा बुत है, उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी भी है। पूछा, फिर कहा कि उसी से पूछ लो ना कि तुम्हारा सत्यानाश किसने किया। वापस लोग कहने लगे इब्राहिम तुम नहीं जानते, हमारे खुदा बोला नहीं करते, इब्राहिम आप नहीं जानते कि ये बात नहीं करते। फरमाया फिर तुम उनको खुदा कहते हो, उनको खुदा कैसे समझते हो जो ना बात करते हैं, ना बोलते हैं, और ना ही उनको ये खबर है कि हमारा ये सत्यानाश किसने कर दिया, हमारी ये हालत किसने बिगाड़ दी। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया 40 मील लंबी चौड़ी आग जलाई जाए, इब्राहिम को इसमें डालना है। जुर्म क्या है? ये एक खुदा की दावत क्यों देता है? जुर्म क्या है? ये क्यों कहता है कि तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते? ये क्यों कहता है तुम्हारे खुदा कुछ नहीं कर सकते? करने धरने वाली जात एक अल्लाह की है, ये क्यों कहता है? इस वजह से इसको सजा देनी है, आग के अंदर डालना है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। जब वो आग जलने लगी, आसमान की खबर लेने लगी, उसके शोले आसमान पर जाने लगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डालने लगे, इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा, तमाशाए लबे बाम अभी। अकल ये कहती है जो इंसान आग के अंदर जाएगा आग उसका लिहाज नहीं करेगी। लोहे को डालो, जिस चीज को आग के अंदर डालोगे, लकड़ी को डालो, घास को डालो, कोयले को डालो, जिसको डालोगे आग उसको जला देगी। अकल ये कहती है इब्राहिम आग के अंदर जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे,
عقل یہ کہتی ہے، لیکن عشق نے کہا جس کے نام پر تم آگ کے اندر جا رہے ہو، جس کی دعوت دینے کی عوض میں تمہیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہ آگ اسی کے حکم کی محتاج ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک آگ تمہارا بال بھی جلا نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، اللہ رب العزت آسمان سے آپ کو حکم دے دیتے ہیں، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار بن جا، اتنی ٹھنڈی نہ سردی لگے نہ اتنی گرم کس کو گرمی لگے، درمیانی کیفیت کے اندر رہ کر اس کے لیے بن جا، گلے گلزار بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، آگ گلے گلزار بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے اس کی گود خالی ہے، بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان والدین سے پوچھو جس کو اللہ رب العزت نے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی گود خالی ہے، اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ایج ہو چکی ہے، عمر ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دروازے پر رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، صالح عمل کرنے والا بیٹا عطا فرما۔ جب بھی والدین دعا مانگے اپنی اولاد کے لیے جو بے اولاد ہیں تو یہی دعا مانگے جو نبی نے سکھائی، ربی حب لی من الصالحین، عربی میں نہ آئے تو پہاڑی میں کہہ دو یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے لڑکا عطا فرما یا لڑکی عطا فرما، مگر کیڑی نیک صالح عمل کی دیوالی، مجھے اولاد عطا فرما اچھے عمل کی دیوالی۔ ہم جب اللہ سے بیٹا مانگتے وقت یہ دعا نہیں کرتے پھر پوری عمر سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑتا ہے، پھر گلے شکوے کیے جاتے ہیں، میری اولاد میری نافرمان ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی۔ میاں غلطی تو ہم نے کی ہے، جب اللہ سے مانگا تھا تو اس وقت یہ نہیں مانگا تھا جو نبی نے سکھایا تھا۔ تو جب بھی اللہ سے دعا مانگے یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما یا نیک بیٹی عطا فرما، جس کی والدین کو تمنا ہو ضرورت ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، دیوار کے پیچھے حضرت ہاجرہ کھڑی ہے، مسکراتی ہے، کہتی ہے ابراہیم تمہاری عمر 120 سال، میری 90 سال، اولاد کیسے ہوگی؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی ابراہیم علیہ السلام جو خدا آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو خدا عیسیٰ کو بغیر خدا کے اس کے باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا۔ خوشخبری دی گئی کہ آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا۔ جب بیٹا ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب بیٹا ہو گیا فوراً دوسرا حکم آ گیا، ابراہیم اس بیٹے کو بھی لے جاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی لے جاؤ۔ یا اللہ کہاں لے جاؤ؟ کہاں دور لے جاؤ، صفا و مروہ کے درمیان لے جاؤ۔ یا اللہ وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ چرند پرند نہیں ہے، انسان نہیں ہے، فرمایا کچھ نہ ہو آپ وہاں لے جاؤ۔ یہ بات کوئی آسان نہیں ہے، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے کہ پہلے اتنے سال کے بعد اولاد ادا کی گئی پھر فوراً حکم آ جاتا ہے وہاں پر چھوڑا جنگل کے اندر۔ آج کے والدین سے کہا جائے واللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہو، کوئی والدین تیار ہوگا ایسا کرنے کے لیے؟ کہے گا یہ کیسے امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے، پہلے اتنے سال تک اولاد ہی نہیں دی اللہ نے مجھے، آج جب عطا کی تو آج کہتا ہے جنگل کے اندر چھوڑا، وہاں تو میری اولاد کو جانور کھا جائے گا، وہاں پانی نہیں، وہاں سبزہ نہیں، وہاں کھانے کا بندوبست نہیں، وہاں رہنے کی جگہ نہیں، وہاں کچھ چیز نہیں ہے، تو یہ کیسی آزمائش ہے؟ پھر نعوذ باللہ کچھ کہتا ہے اللہ کو نہیں ملا تھا آزمائش کے لیے، اللہ کو نہیں ملا تھا امتحان لینے کے لیے، اور امتوں بھی تو اتنی بڑی پڑی ہے دنیا کے اندر۔ یہ سارے کفری الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ ایمان کو ختم کرنے والے ہیں، یہ سارے الفاظ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی اپنے بیٹے کو بھی لے کر چلے، وہاں جب چھوڑا تو واپس پلٹنے لگے، تو ہاجرہ نے پوچھ لیا ابراہیم سے اپنے شوہر سے کہ ہمیں یہاں ویران جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟
इशारा करके फरमाया आज अल्लाह की तरफ से मुझे आपके साथ बात करने की भी इजाजत नहीं है। बीवी भी आखिर नबी की है, कोई आम खातून तो नहीं है। फरमाया इब्राहिम अगर वाक़या अल्लाह रब्बुल इज्जत की यही मर्जी है, इब्राहिम चला जा, हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जिस खुदा के हुक्म का तू पाबंद है उसी खुदा के हुक्म की मैं भी पाबंद हूँ और मेरा बेटा भी पाबंद है। इब्राहिम बाप इब्राहिम है और नबी है, उसका भी इम्तिहान है। बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी है, उनका भी इम्तिहान है। बीवी हजरत हाजरा है और इनका भी इम्तिहान है। फरमाया चला जा, आज तुम्हारी भी हमें जरूरत नहीं है। छोड़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तो जो साथ में कुछ खाना पीना था वो खत्म हुआ। और खत्म होने के बाद जब बच्चे को प्यास ने सताया तो माँ पानी ढूंढने के लिए जब पानी को तलाश करने के लिए निकली तो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा। जब इन पहाड़ियों के दरमियान में पहुंचती तो जरा तेज चलती, इस वजह से कि इस्माइल आंखों से ओझल हो जाता था, गायब हो जाता था। जरा तेज चलती, 7 चक्कर लगाए हजरत हाजरा ने सफा से मरवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी इस बंदी के 7 चक्कर इतने पसंद आए कि फरमा दिया इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कुरान मजीद के अंदर जिक्र आ गया। और फिर फरमा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेरी बंदी हजरत हाजरा ने 7 चक्कर लगाए थे, आप भी हज करने के दरमियान आप पर भी लाजम है कि 7 चक्कर लगाओ। और जब वो दरमियान के अंदर पहुंचकर तेजी से चलती थी, आपने भी उस जगह से तेजी से चलना है। अबू बकर जब तुम हज पर जाओ, आपने भी सफा मरवा पर 7 चक्कर लगाने हैं। उमर जब तुम हज पर जाओ, तुमने भी सफा मरवा पर 7 चक्कर लगाने हैं। उस्मान जब तुम हज पर जाओ, आपने भी 7 चक्कर लगाने हैं। और अली अगर तुम हज पर जाओ तो आपने भी 7 चक्कर लगाने हैं। क़यामत की सुबह तक जो भी हाजी हज करने आएगा उससे 7 चक्कर यहाँ लगाने हैं। जब पानी ना मिला, मायूस होकर वापस पलटी परेशानी के आलम में, और ये ख्याल था दिल के अंदर पानी ना मिलने की वजह से मेरा बेटा दम तोड़ चुका होगा, दुनिया से जा चुका होगा। जब वापस आती है, आकर देखती है कि बेटा इस्माइल अपनी एड़ियां, पहाड़ी में जिसको खुरियां आखते हैं, वो जमीन के ऊपर रगड़ रहा है और वहां से पानी का चश्मा निकला है, जिसको क्या आदम जी आबे ज़मज़म निकला है, पानी का चश्मा निकला है। अब बुजुर्गों, एक पानी 10 दिन एक जगह ठहर जाए, 20 दिन ठहर जाए, 1 महीना ठहर जाए, उस पानी का जायका बदल जाता है, रंग बदल जाता है, मजा बदल जाता है, पानी के अंदर से बदबू आ जाती है। इस पानी को हजारों साल हो गए, ये ना बदला, न इसका रंग बदला, ना जायका बदला, ना मजा बदला, और ना ही इससे बू आई। आज भी कितने हाजी हज के लिए जाते हैं, वो वहां पानी पीते हैं और भरकर साथ लाते हैं, गांव वालों को भी पिलाते हैं, और कितना मजा आता है उस पानी को पीने में। और फरमाया 2 पानी है जिसको आपने खड़े होकर पीना है, एक वुजू से बचा हुआ पानी और एक आबे ज़मज़म का पानी। उसके बगैर खड़ा होकर पानी पीने की सख्त ममानत आई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर एक शख्स खड़ा होकर पानी पीता है, उसको ये पता चल जाए कि खड़ा होकर पानी पीना कितना बड़ा गुनाह है, वो हलक के अंदर हाथ डालकर उस पानी को वापस फूकेगा। बुजुर्गों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीका उम्मत को सिखा दिया है, हर रास्ता उम्मत को बता दिया है। बैतुल खुला, जहां पर क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पखाने से इंसान फारिग होने के लिए जाता है, वहां से लेकर काबतुल्लाह जहां हज किया जाता है, वहां तक का रास्ता जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिखा दिया है कि ये मेरा रास्ता है और बिल्कुल सीधा रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे खुदा को पालोगे, इस रास्ते को छोड़ दोगे दुनिया के अंदर गुमराह हो जाओगे। जब गुमराह हो जाओगे जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। जब तुम जिल्लत के अंदर मुब्तला हो जाओगे, जब तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी जहन्नम बनेगी और आखिरत भी जहन्नम बनेगी। बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कभी कभार हम देखते हैं हमारे घर के, हमारे माशरे के या बाकी जगह के
कुछ खाते पीते हैं तो बाएं हाथ से खाते हैं। अब आप ही बताओ, दाएं हाथ से खाना सुन्नत है या बाएं हाथ से? किस नाल है जी? कदे बोलते भी करा सी किस नाल है, मगर उसने ऐसा ख्याल नहीं रहता कि किस तरह खाना सुन्नत है। अच्छा, मस्जिद में बाहर ये केड़ा पैर रखना जी? खबा मर निर्दय ख्याल नहीं रहता सो को केड़ा रखना है। बाथरूम में गेंदे केड़ा पैर रखना है? खबा मर बढ़दे ख्याल नहीं रहता। अच्छा, वाशी आगे अच्छा क्या करना है? अगर पूछा हाथ देना या खबा हाथ या नहीं देना, ऐसे आराम ना नहीं कर दे, उसने ख्याल नहीं रहता। अच्छा, सूद हराम है या हलाल है? क्या जी? हराम है ना, मगर किंदिया ख्याल नहीं रहता। रिश्वत हलाल है हराम है? हराम है, मगर जिसने देनी पुआ या कितनी पुआ तो उसने शरीयत याद नहीं रहती। अच्छा, किसी मुसलमान को तकलीफ देना जायज है नाजायज है? नाजायज है किसी भी एतबार से हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान क्या हो? महफूज हो, किसी एतबार से भी तकलीफ देना। अच्छा, दोए को गाल कटनी जायज है नाजायज? मर जिसने ऐसा कोई नुकसान करता सी छोड़ दिया, शरीयत याद उसने अस्ती गापा में बकरी मार के छोड़ दे। अच्छा, एक बंदा कारना हुआ है, हमसाए नाल कौन हो गया तो वापस आवा घर पहुंचे, उसकी बीवी सुना के कि आज अस्ते हमसाए सुन तमो 70,000 गाल कड़ी दिया। मियां साहब आदमी में दुगनी वापस देसा, तो फिक्र ना करे, डबल वापस देसा। फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, कब्र के अंदर एक बिच्छू पैदा होता है। शरीयत उस वक्त हमें याद नहीं रहती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो लोग शराब के आदी हैं, शराब हलाल है या हराम पता है हराम है, मगर पीना नहीं छोड़ते, क्योंकि उस वक्त खुदा का खौफ ही दिल से निकल जाता है, शरीयत ही भूल जाती है। बुजुर्गों, असल दीनदार इंसान की अलामत ये है, असल दीनदार और असल ईमान वाला और असल खुदा से खौफ करने वाला, कि उसकी सिर्फ महफिल ही पाक नहीं होती बल्कि उसकी तन्हाई पाक हुआ करती है। महफिल पाक हो कमाल नहीं है। महफिल के अंदर कौन गुनाह करेगा? एक बंदा दूसरे के सामने कहाँ गुनाह करेगा? उसको पता है ये देख रहा, नहीं करेगा। लेकिन तन्हाई के अंदर अगर ये खुदा के खौफ से गुनाह छोड़ रहा है, असल ईमान वाला यही है, असल मुसलमान यही है, असल खुदा से खौफ करने वाला इंसान यही है। मुझे एक मर्तबा एक शख्स कहता है, मैंने उसको नमाज की दावत दी कि नमाज की पाबंदी किया करे, तो वो कहता है मौलवी साहब नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता मेरे दिल के अंदर खौफ खुदा बहुत है। अच्छा, फिर बाद में ये क्या कहता है, हो सकता है उस इंसान से ज्यादा मुझे खौफ हो जो नमाज पढ़ता है, जो गोया उसके नजरिए के मुताबिक जो बंदा नमाज का पाबंद है वो खुदा से नहीं डरता, वो बेखौफ इंसान है। और ये मियाँ जो नमाज कज़ा करते हैं ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से ज्यादा डरता हूँ, मेरे दिल के अंदर ज्यादा खौफ है। कितना इंसान ये झूठा है, कितना लानत का मुस्तहिक है और कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जो बेचारा खौफ की वजह से अदा करता है उसके बारे में इसका नजरिया है कि वो बेखौफ इंसान है। जो छोड़ कर बैठा है वो समझता है कि शायद मैं ज्यादा खौफ रखता हूँ। अच्छा, फिर किसी से नमाज की दावत हो, वो कहता मौलवी साहब नमाज तो मैं ना पढ़ सकता, अलबत्ता मैं सच आता, नमाज तो मैं अदा न कर सकता, कसौनी छोड़ गई थी, अलबत्ता मैं सच तो बड़ा आदमी है, मैं झूठ ना मारता, मैं सच आता। ये बंदा शायद दिल के अंदर ये ख्याल करके बैठा हुआ है कि मैं नमाज छोड़ दूंगा और सच का दामन पकड़े रखूंगा, ये सच मुझे जन्नत के अंदर ले जाएगा। ये इस इंसान की गलत फहमी है और ये शैतान के मकर फरेब के अंदर डूबा हुआ है। नमाज छोड़ने का गुनाह अपनी जगह, नमाज पढ़ने का स्वाब अपनी जगह, सच बोलने का स्वाब अपनी जगह, झूठ बोलने का गुनाह अपनी जगह, रोजा आ गया तो उसका मकाम अपनी जगह, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज अपनी जगह, हर चीज का अपनी अपनी जगह क्या है,
मकाम है। तो सच बोलने वाले साहिब इस चीज को दिल के अंदर ख्याल रख कर ना बैठ जाए कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, तो नमाज नहीं भी पढ़ूंगा तो काम चल जाएगा। ये इसकी गलत फहमी है और शैतान ने इसको धोखे के अंदर डाल के रखा है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नमाज सही निकलेगी तो बाकी अमल भी कबूल किए जाएंगे। अब नमाज सही उसी की निकलेगी जो पाबंदी करता है, जो पढ़ता है। जो पढ़े ही ना तो सही भी कहां से निकलेगी। तो इसलिए बुजुर्गों ये चीज ज़हन के अंदर अच्छे तरीके से बिठा ले। सच बोलना अपनी जगह उसका मकाम है, ईमानदारी करना अपनी जगह उसका मकाम है, और नमाज का जब वक्त हो जाए तो उसको अपनी जगह अदा करना उसका मकाम है। रोजा आ गया तो रोजा रखना उसका अपनी जगह मकाम है। इसी तरीके से सूद से बचना हो तो उसका अपनी जगह मकाम है, रिश्वत से बचना हो तो उसका अपनी जगह मकाम है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक उसका अपनी जगह मकाम है, हमसायों के साथ हुस्न सलूक उसका अपनी जगह मकाम है। हर अमल का अपनी अपनी जगह मकाम है, और हर अमल की मजाक करना, हर अमल के ऊपर हर अमल को छोड़ देना उसका अपनी अपनी जगह क्या है, हिसाब किताब देना है। ये चीजें इनके अंदर बिठा ले। तो मैं बात को खत्म करूंगा। जिलहज का महीना चल रहा है अरबी महीनों के एतबार से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स जिलहज का चांद देख ले, अगर वो कुर्बानी करने के इरादा रखता हो तो उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो कुर्बानी का जानवर ज़बह करने तक अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटे या अपने नाखून तराशे या नाखून काटे। ठीक है, ये हुक्म उसी के लिए है जो अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा, जिसका नाम पर कुर्बानी है। बाकी घर वाले नाखून भी काट सकते हैं और जिस्म के बाल भी काट सकते हैं। और दूसरी चीज, जिलहज का महीना चल रहा है। इस जिलहज का पहला अशरा है, जो पहले 10 दिन है, इनकी बहुत बड़ी फजीलत है। वला यालिन अश्र, इस अशरे की अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर अम्पारे के अंदर सूरतुल फजर के अंदर कसम खाते हैं। तो बड़ी फजीलत है पहले अशरे की। इसके अंदर हमने क्या करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, जिक्र अज़कार की कसरत करनी है। और याद रखें कुर्बानी वाले दिनों के अंदर कुर्बानी से बढ़कर कोई अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकाम वाला हो। यानी तमाम अमलों से बढ़कर उस वक्त क्या है, कुर्बानी ही का अमल है। तो जो हजरात कुर्बानी करने के इरादा रखते हैं, जो साहिब इस्तिताअत है, उन्होंने कुर्बानी करनी है। अब आज तो 2 ज़ुल्हज है, शायद आज पहली ज़िलहज से जब से चांद नजर आएगा तब से लेकर जानवर ज़बह करने तक उस साहिब ने, चाहे मर्द हो या औरत है, जिसके नाम पर कुर्बानी है, ना ही बाल काटने हैं जिस्म के और ना ही नाखून तराशने हैं। ठीक है, और बाकी जो घर वाले हैं वो ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो साहिब निसाब है, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अभी 8 दिन है शायद ईद को, उससे पहले कुर्बानी का अगर उनके लिए बंदोबस्त नहीं हुआ, जानवर का बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो वो उस जानवर का बंदोबस्त कर ले, अपने ये जानवर खरीद लें। छोटा जानवर एक ही तरफ से, और 7 जो बड़ा होगा उसके अंदर 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। फिर कुर्बानी जब की जाती है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मेरे यहाँ ना तुम्हारा खून पहुंचता है, ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, कुछ नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह सिर्फ कुर्बानी को, जानवर को नहीं देखता, उसके गोश्त को नहीं देखता, उसके खून को नहीं देखता, वो हमारी नियतों को देख रहा है कि ये नियत क्या करके कुर्बानी कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है या दिखलावे के लिए कर रहा है। तो हर काम के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा, अल्लाह से दुआ करती रहना है कि अल्लाह हम अपनी रजा में अल्लाह नसीब फरमाए, और हर काम को, जो भी नेक काम होगा अल्लाह की रजा के लिए करनी है। तो बुजुर्गों, जिलहज का महीना चल रहा है। इस जिलहज के अंदर पहले जो 10 दिन है, इसके अंदर रोजों की भी कसरत की जाए। बिलखुसूस 9 जिलहज का रोजा, यानी अरफे के दिन का रोजा। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर पुख्ता यकीन है कि 9 जिलहज के रोजे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत गुज़श्ता साल पहले के और आइंदा 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। तो अभी 9 जिलहज का रोजा जो है, उसका दिन जो है वो बाकी है। तो हम सारे हजरात इंशाअल्लाह इरादा करें जामिया के अंदर, और इससे बाहर भी जो सुन रहे हैं सब इरादा करें इंशाअल्लाह हम 9 जिलहज का यानी यौम अर्शा का, इसका यौम अरफा का रोजा इंशाअल्लाह जरूर रखेंगे। तो कुर्बानी ही के दिन आ रहे हैं,
ان دنوں کے اندر سب سے اللہ کے یہاں جو بڑھ چڑھ کر جو عمل اللہ یہاں قبول کیا جاتا ہے جس کا مقام ہے وہ قربانی کا ہے، تو قربانی کے عمل کو بڑھ چڑھ کر پیش کریں۔ آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ قربانی ہی کی فضیلت آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ بس نہ سننا مقصد ہے نہ کہنا مقصد ہے، مقصد ہے عمل کرنا۔ اس لیے جب بھی سنیں عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔